Today we are going to start this chapter number 1, the story of a village Palampur in class 9th economics. Okay, so let we see what are the contents in this chapter. First you see there is a story about the Palampur village. Palampur village is a small village having around 450 families are here, and it is a 3 kilometers away from Raiganj. Okay, Raiganj is a big village near the Palampur, and nearest town to the village is Shahapur. Okay, in the Palampur there are the several types of transports are visible: carts, bullock carts, tongas, buggies, etc. And now the new commodities are also available in the Palampur village, like motorcycle, jeeps, tractors, and trucks. Okay, and in the when we see about the population of the Palampur, there are the different types of houses which are made up of bricks and cemented plastering, and lump sum SCs Dalits population is 1/3 of the population live in the one corner of the village, and there are also the house of mud and straw. And when we look about the production factors in the Palampur village, then we see that there are the different types of factors are also there. There's a land. Land is simplest form. Land is the physical place where any economic activity takes place. However, land also includes all the natural resources found on it. Resources can include timber or water, oil, livestock, and so forth. Okay. Then we come on the labor. When we talking about the labor, so labor is the second requirement where the people who will do the work, and some production activities require highly educated. Or in the labor it seems obvious, but things can't be produced unless someone makes them. Therefore, another important factor of production is labor. Labor represents all of the people that are available to transform resources into goods or services that can be purchased. It means बच्चों सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्रोडक्शन फैक्टर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है लैंड एरिया. तो लैंड एरिया एक सिंपल फॉर्म है जिसमें कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. लैंड्स में जो लैंड्स को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में भी इंक्लूड करते हैं, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं, ये सब लैंड रिसोर्सेज हैं. इसमें लाइव स्टॉक्स वगैरह भी आते हैं. अब दूसरा होता है लेबर. लेबर की बात करते हैं, सेकंड रिक्वायरमेंट है. लेबर के रूप में जो है अब देखना होगा कि कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो केवल लेबर्स के थ्रू होती है. उसमें लेबर्स में भी कुछ एजुकेटेड होते हैं, एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं, कुछ नॉन एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं. एजुकेटेड वर्कर्स के थ्रू भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं और कुछ नॉन एजुकेटेड एक्टिविटीज़ के थ्रू होती हैं. तो जो नॉन एजुकेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनमें जैसे कि वर्कर्स जो कि मैनुअल वर्क करते हैं. ठीक है. अब आता है थर्ड रिक्वायरमेंट. थर्ड रिक्वायरमेंट में आएगा कैपिटल. Capital is very short for capital goods. These are man-made objects like machinery and equipments, chemicals that are used in production. मतलब बच्चों की कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनपुट्स के रूप में यूज़ की जाती हैं, और इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ता है. और बढ़ने के लिए जैसे टूल्स है, मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, ये सब यूज़ करते हैं. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स को फिक्स कैपिटल बोला गया है. इसके अलावा कुछ रॉ मटेरियल्स होता है जो कच्चा माल होता है, और पैसे होते हैं. तो ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है. रॉ मटेरियल एंड मनी, दीज आर इन द हैंड. मतलब लोगों के पास जब कच्चा माल होगा, पैसे होंगे, तभी तो वो अपना कोई ना कोई प्रोडक्शन कर पाएंगे, कोई ना कोई काम कर पाएंगे. तो टूल्स और मशीनरी, बिल्डिंग्स तो फिक्स कैपिटल में आ गया. ठीक है. कहीं पर औजार है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फिक्स कैपिटल में आ गया, स्थायी जो पूंजी है. और दूसरी बात, जो रॉ मटेरियल कच्चा माल है या पैसे हैं, वो क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल हो गया. अब हम लोग इसके बाद बच्चों बात करते हैं इंटरप्रेनरशिप की. इंटरप्रेनरशिप कैसी होती है? देखो, इंटरप्रेनरशिप का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ह्यूमन नॉलेज रखते हैं, जो कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग है जो स्पेशलाइज नॉलेज रखते हैं. और स्पेशलाइज नॉलेज के अलावा वो कोई ना कोई प्रोडक्शन करने के क्या होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है. जैसे कि आपने ये देखा कि यहाँ पर लिखा है, देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट. इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हमें जो चौथा रिक्वायरमेंट है वो इंटरप्रेन्योरशिप का है. इसमें स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए किसी व्यक्ति के पास, वो एक्सपर्ट होना चाहिए किसी भी एक क्षेत्र में, जिससे कि वो वहाँ पर लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ा सके, प्रोडक्शन कर सके, और वो बिजनेस को डेवलप कर सके. ऐसे व्यक्ति को इंटरप्रेनर कहते हैं. इंटरप्रेनर का मतलब हुआ कोई उद्योग को स्थापित करने वाला, कोई उद्योग को बढ़ाने वाला. ठीक है. अब जब
ये सारी की सारी चीज़ें, तीन चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा लैंड, लेबर और ये कैपिटल, ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो इससे जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और उसमें अगर कोई एक्सपर्ट है, कोई नॉलेज उसको देने वाला है या कोई नया नॉलेज है उसके पास कि उसमें वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके क्या कहते हैं किसी एक क्षेत्र में, किसी एक फील्ड में बिजनेस को बढ़ा लेता है, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे इंटरप्रेनरशिप। ओके, अब आता है कि इंटरप्रेनर के बाद हम लोग कहेंगे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। पालमपुर में जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या इसमें इंक्लूड की गई हैं। देखिए मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, जैसे कि अभी डायग्राम देख रहे हैं, इसमें मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में देखिए फार्मिंग है। फार्मिंग के अलावा जैसे कि फार्मिंग में देखिए क्या क्या यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पर मशीनरी यूज़ की, मशीनरी में जैसे फार्म में ट्रैक्टर यूज़ करेगा तो इसको डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसमें अपने खेत में वो अच्छी मॉडर्न फार्मिंग मेथड से खेती करेगा, बायो फर्टिलाइजर्स हैं ये सब यूज़ करेगा, मैन्योर्स यूज़ करेगा, HV सीड्स का यूज़ करेगा, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करेगा। अगर उसमें कीड़े ना लगे तो उन्हें पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके जो है कीड़े भगाए जाएंगे, या जो एक्स्ट्रा जो प्लांट्स होते हैं उनको साथ उनके लिए विडीसाइड्स का यूज़ करेगा। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में एक और चीज़ आएगी, इसमें इरीगेशन भी यूज़ होगा। इरीगेशन के लिए फिर कैनाल्स बनाएगा, कैनाल से इरिगेशन होता है, पंपिंग सेट्स लगाते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज़ करके डैम्स वगैरह का प्रोजेक्ट होता है, उसके थ्रू नहरें छोटी छोटी निकाली जाती हैं, उनसे भी इरिगेशन होता है। तो ये तो एक्चुअली क्या हुआ कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गई। तो जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर विलेज की वो क्या है, फार्मिंग है। और बहुत सारी जो उसकी जनता है वो अपने अर्निंग के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए इसी फार्मिंग पे डिपेंड है। अच्छा, तो एक तो हो गई फार्मिंग एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में अगर हम देखें तो देखो बच्चों, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि इन्हें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर में, जिसमें 25% जो पीपल है वो पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचना, दूध निकालना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे खुली, जैसे वीवर्स हैं, पॉटर्स हैं, कुछ लोग बर्तन बनाने का काम करते हैं, कुछ कैसे कालीन बुनते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ में हैं, कुछ लोग बुग्गी चलाते हैं, कुछ टोंगा चलाते हैं। तो ये सब लिमिटेड स्केल पर होता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब आता है कि इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज़। क्या क्या फार्म एक्टिविटीज़ में, जैसे कि अब हम लोग पहले बात करेंगे फार्म एक्टिविटीज़ की। अभी हमने नॉन फार्मिंग की तो हमने आपको समरी बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इन्होंने कहते हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं, कुछ फार्मिंग एक्टिविटीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी किए हैं। जैसे दो फार्म लैंड एरिया अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड, बैरन एंड लैंड कैन बी डेवलप्ड इनटू फार्म लैंड बाय प्रॉपर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आफ्टर 1960s। 1960 के बाद इन्होंने क्या किया है कि 1960s के बाद देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फार्म लैंड एरिया जो है वो बहुत पहले कम थे और काफ़ी सारे खेत जो इनके होते थे वो बंजर होते थे, बैरन लैंड होते थे। लेकिन इनको इन्होंने क्या किया कि अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर करके 1960 के बाद बहुत डेवलप किया। एंड ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे ऑफ फार्मिंग विच हैव दे अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। इसमें इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, इनमें इन्होंने चेंज किया मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग की। मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन्होंने जो है एक ऐसी टेक्निक अप्लाई की जिसमें एक क्रॉप से, एक लैंड एरिया पे एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो किया, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल फार्मिंग मेथड। अब मल्टीपल फार्मिंग मेथड में इन्होंने जैसे कि एक ही लैंड एरिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को उगाया उस टेक्निक से। फिर होता है येल्ड। येल्ड का मतलब हो जाएगा इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू इंडिया ट्राई टू यूज द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। अभी मॉडर्न फार्मिंग मेथड की हमने बात की थी तो मल्टीपल क्रॉपिंग की इन्होंने, है ना। मल्टीपल क्रॉपिंग के बाद क्या किया, येल्डिंग बढ़ाई। येल्डिंग करने का मतलब है कि वहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। अब प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया कि मोर येल्ड फ्रॉम सेम आर एरिया ऑफ लैंड कैन बी अचीव बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग करें यानी कि एक ही टाइम में हम एक में, जैसे कि आम का बाग लगा रहे हैं, आम के बाग के नीचे मटर के पौधे बो दिए उन्होंने, मटर के पौधों में मटर लग रही है। गेहूं भी बहुत लोग लगा लेते हैं, नीचे गेहूं लगा देते हैं, ऊपर आम का बगीचा लगा लेते हैं और उसमें हनी बी भी पाल लेते हैं। तो वो एक्चुअली क्या है, वो मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि एक ही टाइम में एक ही लैंड एरिया में कई सारी क्रॉप्स को उगाना, ठीक है। अच्छा, और उससे क्या होगा, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो अभी से बताए थे। अच्छा, जब यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जब इन्होंने बहुत सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ किया, जैसे HV सीड्स का यूज़ किया, और इन्होंने जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज़ किया, फूड ग्रेन्स लार्ज क्वांटिटी, केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करना शुरू कर दिया और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इनके यहाँ क्या हुआ कि ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब है हरित क्रांति हो गई। और बहुत सारे क्षेत्र जैसे पंजाब है, हरियाणा है,
है ना, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के रीजन में बहुत सारे लोग जो किसान हैं, ये सब ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इंडिया में अप्लाई करने शुरू कर दिए, जिससे कि इनका क्या हुआ कि इनका प्रोडक्शन बढ़ गया। अब आता है कि कैपिटल एंड इंटरेस्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर। अगर हम ये भी देखें कि जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, वो छोटे छोटे फार्मर्स क्या करते हैं, वो छोटे छोटे फार्मर्स जो है मनी को बोरो करते हैं हाई इंटरेस्ट पे। देखो, बड़ा जो किसान होगा वो क्या करेगा, वो अपने पैसों को तो जो है खुद सेविंग करके रखता है, सेविंग करके रखेगा तो वो क्या चीज़ ले लेगा, वो आप ये समझ लीजिए कि अगर उसके पास ज़्यादा पैसे हैं किसान के पास तो वो अपनी फार्मिंग में लगा लेगा। लेकिन जो छोटा किसान है वो क्या करेगा, वो छोटा किसान क्या करता है कि कहीं से क्या कहते हैं कि मनी को इंटरेस्ट पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे मनी बोरो करेगा, मनी को लेगा, उधार लेगा। इससे क्या करता है, वो उधार लेके कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करता है, और कैपिटल का जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस फार्मिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा। अच्छा, चूंकि किसान जब मान लीजिए कहीं से उधार लेगा तो उसको ये भी रहता है कि उसको वो उधार चुकाना भी पड़ता है। अब चुकाना पड़ेगा तो इससे उसको परेशानी भी होती है, उसको डिस्ट्रेस हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा ना, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द मनी लेंडर्स विलेज द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स एंड कल्टिवेशन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सच लोन्स इज वेरी हाई दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। मतलब कहने का कि स्मॉल फार्मर जो है अक्सर क्या करते हैं कि अपने कैपिटल बढ़ाने के लिए या कैपिटल को का अरेंजमेंट करने के लिए मनी को बोरो करते हैं दूसरे से, जैसे मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, लार्ज फार्मर्स हो गए, उनसे ले लेते हैं। उनसे लेने के बाद में क्या, उनके ऊपर हमेशा लोन का कर्जा चढ़ा रहता है, लोन के लिए उनको बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है कि भाई हम कैसे लोन पे करेंगे, अगर मान लीजिए कि उनकी फसल कहीं खराब हो गई तो उन्हें और परेशानी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स ये भी करते हैं कि दे ऑल्सो बोरो द मनी एंड फार्मर्स ऑल्सो प्रोड्यूस क्रॉप्स ऑन देयर लैंड्स, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कोई फार्म में कुछ लगाया तो उसका सेल भी करेंगे। अब सेल करने में क्या होता है कि फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप्स ऑन देयर लैंड बाय यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। भाई लैंड, लेबर और कैपिटल लगा करके किसी फार्मर ने कुछ प्रोडक्शन किया तो दे रिटेन अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो उसमें क्या होता है कि जैसे उन्होंने कुछ पार्ट तो अपने लिए बचा के रख लिया, है ना। आप लोग भी ऐसे करते होंगे कि जैसे खेती में कुछ जो होता है उसको तो वो बचा के रख लेते हैं बहुत कुछ। अभी आप लोग भी खेती करते हैं तो क्या खेतों में आपने देखा होगा कि फसलें उगाई जाती हैं, फिर उसके बाद में वो किसान क्या करता है कि वो अपनी फसल को जो अपने खाने भर का साल भर का होता है उसको तो बचा के रख लेता है, बाकी क्या करता है कि वो सरप्लस जो अमाउंट होगा उसकी सेल करता है। तो ये हम वही पढ़ेंगे कि सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स में जैसे कि मैंने कहा कि लैंड, लेबर और कैपिटल का यूज करके फार्मर ने क्या किया, अपने यूज के लिए तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया, और उसके बाद जो बाकी बचा सरप्लस का उसको आपको वो नियर बाई मार्केट में जाकर के बेच आते हैं, सेल आउट कर जाते हैं। तो दैट पार्ट ऑफ फार्म प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। तो जो ये जो चीज़ ये जो मार्केट में जाकर के बेच के आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे मार्केटेबल सरप्लस। ओके, अब मार्केटेबल सरप्लस जो है, जो फार्मर है वो अपनी सारा प्रोडक्शन जो भी उसने अपने लिए बचाया था उसके बाद जो बचा वो सारा उसने जाकर के बेच दिया, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, मार्केटेबल सरप्लस। अब मार्केटेबल सरप्लस जो है, छोटे छोटे फार्मर्स क्या करते हैं, उनके पास कम लिटिल सरप्लस होता है, क्योंकि उनके पास भाई पैसा कम है तो पैसे में वो खेती भी कम कर पाते हैं, उससे उनका जो सरप्लस होता है अमाउंट वो कम होता है। ये कभी मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा मार्केट में सेल करके आते हैं। अब दूसरे आता है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो पालमपुर में हो रही हैं उनमें लगभग समझ लीजिए कि वहाँ पर 24% ऑफ इंडियन विलेज पॉपुलेशन, 24% एरिया या 25% एरिया जो है वहाँ के लोगों का द्वारा वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। उसमें जैसे कि 76% जो फार्मर है, आप ये समझिए 76% जो फार्मर है ये फार्मिंग पे यानी कि ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और बाकी जितने भी बचते हैं 24 से 25 ये सब नॉन फार्मिंग एक्ट में। नॉन फार्मिंग में बताइए जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, डेयरी फार्मिंग है, कैटल है, और कैटल फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, छोटी छोटी वीवर्स जैसे बनाते हैं, बुनकर बनाते हैं, कालीन बना लिया किसी ने, कोई क्या कहते हैं पॉटर मेकिंग करते हैं ना, पॉटरी मेकिंग करते हैं। कुछ शॉपकीपर्स भी होते हैं, जैसे ये शॉपकीपर्स होते हैं पालमपुर में, तो वो भी क्या करते हैं, वो अपना जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ मनी, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वेरियस गुड्स वहाँ बेच लेते हैं, होलसेल रेट पे भी बेचते हैं सिटीज़ में, वहाँ से खरीद के लाते हैं, उसके बाद उनको विलेज में बेचते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं गांव में वो गेहूं के बदले, चावल के बदले, शुगर टी ऑयल के बदले में मतलब कुछ सामान दे देते हैं, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, ये सब बेचते हैं, पेंसिल वगैरह ना। तो ये छोटे छोटे वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं गाँव में। अब आता है ट्रांसपोर्ट सर्विस कैसी है पालमपुर की, उसमें टोंगा वाला, रिक्शा वाला, जीप, ट्रैक्टर,
ट्रॉली ये सब चलती है वहाँ पे, जो कि रायगंज बड़ा एरिया है तो वहाँ पर ये सब चलती है। अब पालमपुर छोटा एरिया है तो पालमपुर के अंदर क्या बुलक कार्ट चलेगी, है ना, बोगी चलेगी, ट्रैक्टर्स चलेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों, ये पूरा ओवरऑल जो है ये डिस्क्रिप्शन था इस पूरे चैप्टर का। अब मैं अगर थोड़ा सा समराइज फॉर्म में अगर इसको देखूं तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। देखो फार्मिंग जो है इसका मेन प्रोडक्शन था, ओके, इस विलेज का। बहुत सालों से यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही थी, लेकिन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने जो है जो लैंड का जो फिक्स था, और पहले स्केयर था, तो यानी कि लैंड फिक्स होते थे लोगों के पास में, कम थे, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, अपना प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया कि नए नए लैंड्स भी लेना शुरू किया। और जिनके पास कम लैंड एरिया था और कैपिटल ज़्यादा थी, तो वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स, उन्होंने क्या किया कि उनके पास सेविंग हुई, तो सेविंग करके उन्होंने, वो लोग सेविंग करके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है कैपिटल का अरेंजमेंट करने के लिए एबल थे, यानी कि वो अपने लिए अगले सीजन के लिए पैसे उनके पास हो सकते थे, उसके लिए एबल थे। जबकि दूसरे अगर हाथ पे देखें तो छोटे छोटे फार्मर जो थे, लगभग 80% जनता जो है इंडिया की वो छोटे छोटे फार्मर्स के रूप में, स्मॉल फार्मर, उनको बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे प्लॉट्स होंगे, उनके पास छोटी खेती होगी, उनके पास प्रोडक्शन इतना इनफ नहीं होगा, तो इसलिए उनके पास जो सरप्लस अमाउंट होगा, जो पर्याप्त मात्रा से अधिक होगा, वो भी कम होगा तो वो दे आर अनेबल टू ऑब्टेन द कैपिटल, तो इसलिए उनके पास अगले सीजन में खेती करने के लिए पैसा ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करेंगे, वो डेप्ट लेंगे, दूसरों से उधार लेंगे, उधार का इंटरेस्ट हाई होगा तो इसलिए उनको भाई टेंशन भी होगा कि उधार कैसे चुकाया जाए। और इनके लिए वो अदर फार्मिंग एक्टिविटीज के अलावा भी अलग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करके भी पैसा कमाते हैं, ठीक है। और जब उनके पास प्रोडक्शन होता है फार्मिंग से, तो वो उस चीज को क्या करते हैं, पहले अपने परिवार के लिए बचाते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए जो है अनाज बचाते हैं। उसके बाद जो बचता है उस एबंडेंट अमाउंट को वो जा करके उसमें लेबर वगैरह खर्च करके उस प्रोडक्शन को बाहर मार्केट में बेच के आते हैं। और उसके अलावा बच्चों जो है इसमें लेबर जो है वो ऐसा लेबर है पालमपुर में जो कि खेती के अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि 24 हमेशा जो है 12 मंथ तक वहाँ पे खेती नहीं हो पाती है, तो 12 मंथ तक खेती नहीं हो पाती, इसलिए वो क्या करता है, नेबरिंग विलेज में माइग्रेट करता है। माइग्रेट करने का मतलब है एक कि जो लेबर है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव जाके माइग्रेट करता है। माइग्रेट करेगा तो विलेज, टाउन और सिटीज में पहुंचेगा, और जो नॉन फार्मिंग सेक्टर है उनमें भी जाता है। नॉन फार्मिंग सेक्टर में मैंने आपको बताया कि 24% जो जनता है या 24% फार्मर है वो इंगेज है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में 100 में से, और जो 76% है 74% है वो फार्मिंग एक्टिविटीज में आज भी इन्वॉल्व है। अब फ्यूचर में जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि, और ऐसे किसान भी हैं जो कि अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जैसे कैटल रियरिंग में है और अदर फूड प्रोडक्शन है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ में लग गया। तो ये सब करने के अलावा गुड्स है, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, इन सब की का भी विकास धीरे धीरे पालमपुर में हो रहा है। और जब ये कहते हैं कि जब इनका जो चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, है ना, चाहे स्मॉल फार्मर है चाहे बिग स्केल फार्मर है, तो वो क्या करता है, जब उसके भाई जब वो पैसा ज़्यादा, सॉरी, जो प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन के बाद में वो जो सरप्लस अमाउंट बचता है वो मार्केटेबल सरप्लस के रूप में बाहर बेच के आता है, उससे वो पैसा अर्न करता है। अब पालमपुर में जो नेबरिंग विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं कोई लेबर करने के लिए, उसमें जैसे मिल्क है, जैगरी, वीट एक्सेट्रा, इनको भी मार्केट में बेचते हैं। तो इस तरीके से जो बहुत सारे विलेज हैं अब एक दूसरे से, टाउन और सिटी से कनेक्ट हो गए हैं, जैसे, और कनेक्ट किसके थ्रू हैं, जहाँ पर जैसे गुड्स हैं, रोड्स हैं, गुड रोड्स, अच्छी रोड्स बन गई हैं पालमपुर में, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, टेलीफोन फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल हो गई। तो इससे जो है जो छोटा या बड़ा किसान है वो क्या करता है, वो छोटे गाँव का जो किसान है वो अब बड़ी जगहों से, बड़ी सिटी से जुड़ गया है। तो इस तरीके से उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं तो किस किस क्षेत्र में बढ़ी, एक तो फार्मिंग में तो पहले से बढ़ गई, दूसरी बात है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, जैसे कि कहीं कोई इंप्लॉयमेंट करने जा रहा है, कोई जॉब रिसर्च कर रहा है सपोज, और कुछ अलग एक्टिविटी जैसे शॉपकीपर्स हो गए, कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, कोई कहते हैं कोई टोंगा रिक्शा चलाने के लिए चला गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो कोई कैटल रियरिंग कर रहा है, तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, अब उसमें इन्वॉल्व हो जाता है व्यक्ति। तो इस तरीके से जो आने वाले सालों में हम कह सकते हैं कि विलेज में रहने वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो ये थी बच्चों पूरी स्टोरी इस विलेज ऑफ पालमपुर की। I hope that you will like this video, and please subscribe my channel, and please give me the more and more likes and share the videos too. Okay, till then, and bye.